Yes, students, from 27th, your practicals are starting. I think you are aware of the groups also, you know, to be prepared according to that. Any experiment done before will not be repeated, so you have to be present. Okay, yesterday we were doing standing waves, graphical generation of standing waves. दो interval आपने बना लिए थे, 5 complete करने हैं. So I am drawing again, right? So standing waves, graphical generation we were doing. Why you late? फाइल का ये टाइम ही है. नहीं, वो इस टाइम थोड़ी है बताना. आप इस टाइम, ये टाइम थोड़ी है जब आपका दूसरा पीरियड चल रहा है. So 5 intervals you have to mark. This is second ray traveling in same phase but in the opposite direction. This is resultant standing wave. Okay. In the second situation, I told you and this is our standing wave. ये कल ड्रॉ कर लिया था हमने. So standing wave is taking the shape of a straight line. एक एक इंटरवल और मार्क कर लो. नाउ नेक्स्ट, अब ये वेव हाफ और कट कर दूंगी. अब यहां से स्टार्ट कर दो, 1/4 और कट कर दो. अब यहां से स्टार्ट करेंगे लाइक दिस. और ये ग्रीन वेव जो है इसको भी 1/4 और कट कर दो. इसको यहां से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. Again crest is falling on crest, trough is falling on trough. Again constructive superposition will take place and we will have amplitudes added up once more. So this is at instant t is equal to t by 2. Then cut 1/4 of wave once more. And again cut 1/4 of green wave also once more. And again you can see that crest is falling on trough and trough on crest. So they will get cancelled, destructive interference, destructive superposition, and again the wave is assuming the shape of a straight line. So once in a time period you can see a wave takes the shape of a straight line twice.
Again cut 1/4 portion of the wave from both the sides and you will get the situation, same situation once again from where we started. ग्रीन, ये 1/4 को दोनों एंड से कट करते जाना है आपको. Again constructive superposition and addition will take place. So this is in a complete time period over 5 intervals of time. We have seen how a stationary wave, standing wave, that is generated. So this is the graphical formation of a standing wave. Now we have certain observations from this graph. Once you draw it, tell me. अरे कल वाली कहाँ गई आप? ये तो बहुत सुंदर बन गई है. माल. हाँ. हाँ. Orange wave is standing wave. First wave white color I have used, second wave I have used green color, and for the standing wave I have used orange color. So same way you can also use pens of different colors, or you can draw one solid line, one dotted line and one thick line. ये आज बन जाएगा, आज बन जाएगा. दो केसेस कंप्लीट करके आने चाहिए थे ना, जो कल कर लिए थे हमने. अच्छा, कुछ पता नहीं लग रहा है. ओके, साथ साथ ऑब्जर्वेशन देखिए. From observing only the orange lines, only the standing waves we see. ध्यान से देखिए ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट, ये मीन पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, ये भी मीन पे है ऑरेंज लाइन में, ये भी और ये भी. इसका मतलब there are some points that are always at rest. These positions are called node. n क्या है यहाँ पे? नोड. यहाँ पे भी देखो आप, हमेशा स्टैंडिंग वेव में ये पार्टिकल यहाँ पे मीन पोजीशन पे रेस्ट पे ही है, तो ये भी नोड है, ये भी नोड है. सेम वे ये भी नोड की पोजीशन है, ये भी और ये भी. So nodes are the positions where particles on standing waves are permanently at rest. हमेशा इन पोजीशंस पे पार्टिकल्स रेस्ट पे रहेंगे. एंड उनके इन बिटवीन अगर आप देखो तो जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, आप देख रहे हो यहाँ पे. तो हर एक दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड, उन पोजीशंस को हम एंटी नोड कहते हैं. तो बिटवीन एनी टू नोड्स देयर आर एंटी नोड्स. So antinodes are the positions of maximum displacement. So these are two very key points, key definitions in case of stationary waves or standing waves. Nodes and antinodes क्या होते हैं, तो वो भी आप साथ में लेबल कर लो.
Done? If you have done, do like this, students. इधर इनको कह रहे हो गया आपका पवन? वो क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ये तो बनाना ही पड़ेगा ना। ये पढ़ा है इसमें? ये तो नहीं पढ़ा। सब बड़ा बोर्ड क्या कॉपी में भी ऐसे ही बन जाएगा? टाइम ओवर अ कंप्लीट टाइम पीरियड लिया ना, वन कंप्लीट टाइम पीरियड को T/4 के इंटरवल्स में डिवाइड किया। T/4 2 T/4 3 T/4 4 T/4, क्योंकि वेव जो है वो बहुत फास्ट होती है, तो एक ही टाइम पीरियड में इतनी वेरिएशंस हो जाती हैं, वो हमने सोचा। लिखिए डेफिनेशन, व्हाट आर नोड्स? Nodes are the positions of minimum displacement या zero displacement, zero velocity and maximum strain. Nodes are the positions of minimum displacement, minimum velocity and maximum strain. वहां पे चाहे डिस्प्लेसमेंट जीरो है पर पार्टिकल्स उस टाइम पे मैक्सिमम स्ट्रेन में होते हैं। मतलब स्ट्रेन का मतलब क्या? मैक्सिमम चेंजेस इन प्रेशर एंड डेंसिटी आर टेकिंग प्लेस देयर। सो नोड्स आर द पोजीशंस ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम स्ट्रेन। मैक्सिमम स्ट्रेन मींस चेंजेस इन प्रेशर एंड डेंसिटी आर मैक्सिमम देयर। तो मतलब ये पोजीशन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, जहां पे हमें लगता है कि जीरो पोजीशन है, पार्टिकल रिलैक्स्ड है। नो, ऐसा नहीं है, वहां स्ट्रेन सबसे ज्यादा है नोड्स के पॉइंट्स। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्ट्रेन। एंड ऑन द अदर हैंड, व्हाट आर एंटीनोड्स? एंटीनोड्स आर द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम स्ट्रेन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्ट्रेन। क्योंकि इन पॉइंट्स पे पार्टिकल जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जब पहुंच गए तो दे आर रिलैक्स, तो चेंजेस इन प्रेशर एंड डेंसिटी आर मिनिमम देयर। तो देखने में लगता है कि पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, बहुत स्ट्रेन हो रहा है, बहुत टेंशन, बहुत ही प्रेशर और डेंसिटी वेरिएशन हो रही है, ऐसा नहीं है। वहां पे वो रिलैक्स्ड होते हैं जब वो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्वायर कर लेते हैं, तो वहां पे स्ट्रेन मिनिमम होता है। सो दीज पोजीशंस आर कॉल्ड एंटीनोड्स। ठीक है, अब लिखिए डिफरेंसेस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टैंडिंग वेव। इनमें क्या डिफरेंस क्या है? हमें लगा ये एक न्यू टाइप ऑफ वेव है जिसको हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन की शेप भी ले सकती है, जबकि पहले जो वेव्स हैं हम उनको हमेशा साइन या कोसाइन कर्व की शेप में बनाते थे। तो ये कौन सी वेव है जो एक स्ट्रेट लाइन की शेप भी ले रही है? So these are entirely new kinds of waves, stationary waves. So let us find out differences between them. और एक चीज और, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं स्टैंडिंग वेव पे, they cross the mean position simultaneously, they cross the extreme position also simultaneously. एक ही टाइम पे वो सब पार्टिकल्स मीन या एक्सट्रीम पोजिशन को क्रॉस कर जाती है। ऐसा ऑर्डिनरी वेव में नहीं होता। चलो लिखिए, लाइन लगा लो, प्रोग्रेसिव वेव वर्सेस स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव। हाँ, सबसे पहले लिखिए प्रोग्रेसिव में दे मूव फॉरवर्ड, दे मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दे मूव। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव दे आर ट्रेवलिंग वेव एंड दे मूव ऑनवर्ड, ये मूव करती हैं। और स्टेशनरी वेव बाय द नेम दे अपीयर टू बी स्टेशनरी, दे डोंट मूव एट ऑल, एक ही प्लेस पे वाइब्रेशंस होती हैं। आई गेव यू एग्जाम्पल कि एक दो हम हैंड्स में फिक्स कर ले रबर बैंड को,
तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती वेव। जबकि हम एक रोप के मतलब एक हैंड को छोड़ दें, रोप को फ्री छोड़ दें, इसको जर्क दें, तो वो जो वेव है वो आगे फॉरवर्ड मूव करेगी, वो प्रोग्रेसिव वेव जो आगे आगे मूव कर रही है। जब हमने दोनों एंड फिक्स कर दिए, रबर बैंड को खींच के छोड़ दिया, उसमें जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो स्टेशनरी वेव्स के पैटर्न्स बन रहे हैं और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही। ठीक है, सो वेव डज नॉट प्रोसीड or move in any direction, neither in forward direction nor in backward direction. It vibrates at the same place. Second point लिखिए, energy transfer takes place. You know, wave motion is a periodic motion in which transfer of energy takes place from one place to another place. तो प्रोग्रेसिव वेव में जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपगेट करेगी। But stationary waves में no net transfer of energy takes place. Whatever energy is gained in one direction is lost in the other. ठीक है, no net transfer of energy takes place because whatever energy is gained in one direction, is lost in the other. Incident wave एक डायरेक्शन में एनर्जी लेके जा रही है, रिफ्लेक्टेड वेव दूसरी डायरेक्शन में एनर्जी लेके आ रही है, वो कैंसल आउट हो रही है। सो नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक। तो आप ये रीजन भी दे सकते हो कि व्हाई स्टैंडिंग वेव्स आर कॉल्ड सो। उनको स्टैंडिंग क्यों कहा जाता है, उनको स्टेशनरी क्यों कहा जाता है? बिकॉज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन एनी डायरेक्शन। दे कैन मूव फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स। किसी भी एक वेव हमारी उधर जा रही है, आगे को जा रही है, एक वेव हमारी उधर को जा रही है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है, कोई भी वेव हो सकती है। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव में नेक्स्ट आप क्या बता सकते हो कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ साइन और कोसाइन कर्व। Progressive waves are in the shape of sine or cosine curve. They can also take the shape of a straight line. Stationary waves can also assume the shape of a straight line, जैसे कि हमने ग्राफिकल जनरेशन में देखा, एक ही टाइम पीरियड में 2 बार स्ट्रेट लाइन की शेप एक्वायर कर दी। No particles are permanently at rest in progressive waves. No particles are permanently at rest. कोई भी पार्टिकल नहीं है जो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। स्टेशनरी वेव में नोड्स पे जो पार्टिकल्स हैं दे आर परमानेंटली एट रेस्ट। एट नोड्स पार्टिकल्स आर परमानेंटली एट रेस्ट। At nodes all the particles are permanently at rest. In progressive waves all the particles don't cross the mean position simultaneously. Don't cross mean position simultaneously. एक साथ क्रॉस नहीं करते हैं, जबकि उसमें होता है ऐसे। इसमें देख क्रॉस। ऐसे ही मीन की जगह एक्सट्रीम पोजीशन लिख दो। The particles don't cross even the extreme position simultaneously. एक ही टाइम पे क्रॉस नहीं करते, यहां पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट प्रोग्रेसिव वेव में that changes in pressure and density, the strain that is same at all the points. कहीं पे ये नहीं मैक्सिमम नहीं है, कहीं पे मिनिमम नहीं है। strain is same at all the points, but in standing waves the strain is different at different points. At nodes the strain is maximum, at antinodes the strain is minimum. So you can write the last point, progressive waves में the strain is same at all the points, और standing waves में
At nodes, the strain is maximum. At antinodes, it's minimum. So these are other points are also there, but these are the main points of difference. क्या स्टैंडिंग में सेम नहीं है? स्टैंडिंग में हमने कहा नोड्स पे मैक्सिमम स्ट्रेन होता है, एंटी नोड्स पे मिनिमम होता है, हमने डिफाइन किया ना. प्रोग्रेसिव में स्ट्रेन सेम रहता है एट ऑल द पॉइंट्स. प्रोग्रेसिव में स्ट्रेन रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स. इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. तो 3 डेरिवेशंस आई टोल्ड यू. फर्स्ट डेरिवेशन लेट अस स्टार्ट. ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग, जैसे कि सोनोमीटर वायर. तो उसमें जब ये सितार है, गिटार है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें जब एक वायर को प्लग किया जाता है तो वो कैसे साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती हैं. लेट अस डू दैट. ठीक है, तो फर्स्ट इज एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन stringed instruments या in string. Transverse standing wave in a string. Transverse standing waves in a string. तो यही पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था मैंने कल कि एक 2 फिक्स्ड एंड्स के बीच में हम एक स्ट्रिंग लगा देते हैं, उसको प्लग करके छोड़ देते हैं. जैसे कि ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, सितार, गिटार वगैरह, उसमें प्लग किया जाता है उनको, तभी आवाज आती है ना, तभी वो वाइब्रेट करती है. तो ये इंसिडेंट वेव है, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, दिस सुपर इम्पोज एंड स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो ये सपोज x इक्वल टू 0 एंड है, ये x इक्वल टू l एंड है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l. Right? So let us write the wave function for incident wave. How can we represent incident wave mathematically with the help of our wave function? You know that y1 is a sine 2 pi by lambda. Left to right है wave, तो vt minus x होगा. लेफ्ट टू राइट जा रही है ना इंसिडेंट वेव, तो इसके लिए हम vt minus x करेंगे. And how can you write the equation for reflected wave? कोई बता सकता है? For reflected wave, y2 is equal to a sin, एक तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट आ रही है. एक तो ये चीज, और कोई चीज, पाई, एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई विल बी इंट्रोड्यूस्ड because reflection is taking place at a denser medium. एक रिजिड वॉल से वेव टकराएगी तो फ्लिप होके वापस आएगी. देयर विल बी एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई हियर. रीजन लिख दीजिए यहाँ, because reflection takes place at a denser medium. Reflection is taking place at a denser medium, so additional phase difference of 180 degree pi will be introduced. Now what is sin 180 plus theta minus sin theta? तो ये हमारी इक्वेशन हो गई माइनस ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt प्लस x. इसका इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1. So they are superimposing according to principle of superposition. Resultant displacement is the sum of individual displacements. Put the values, take a common, sin 2 pi by lambda vt minus x minus sin 2 pi by lambda vt plus x. a कॉमन ले लिया, बस मैंने वैल्यूज पुट कर दी. See if these steps are clear to you. हाँ, क्योंकि वेव एक लेफ्ट टू राइट जा रही है, उसमें हम y माइनस लेते हैं.
जब राइट टू लेफ्ट आती है तो x माइनस एक्स हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब वेव फंक्शन करवाया था तब मैंने बताया था ना, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, वो जो पाई ऐड किया था उसका इफेक्ट भी तो आएगा ना उस पर। तो साइन यहाँ पे लिख लो मेडिकल स्टूडेंट, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो 180 तो उड़ गया यहाँ पे, जो माइनस आ गया। अब ये सी डी फॉर्मूले लगेंगे। हाँ जी, क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी? हाँ, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। सी डी फॉर्मूला अब लगेगा इनके, मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला। So using CD formula, नोट करो, साइन C माइनस साइन D, 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2 using this formula. So we get y is equal to 2a cos. अब ये पूरा एंगल C है आपका, ये पूरा एंगल D है। इनको रफ में आप प्लस कर लो तो माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, 4 पाई वी टी बाय लैम्डा बाय 2, वो क्या हो जाएगा 2 पाई वी टी बाय लैम्डा हो जाएगा। इसको आप रफ में चेक करके देख लो, c प्लस डी बाई 2, दोनों एंगल्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करके देख लो, यही आएगा साइन c माइनस डी बाई 2। अब इन दोनों एंगल्स को माइनस करो, माइनस करोगे 2 पाई वी टी बाय लैम्डा विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। देखो याद है, रफ में c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2 करके देखो, यू विल गेट दिस। हाँ जी, कौन लेफ्ट हो रहा है यहाँ पे? So we get y is equal to minus 2a cos 2 pi vt by lambda sin 2 pi x by lambda, because sin of minus theta is minus sin theta, तो ये माइनस बाहर आ, ठीक है। अब हम लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस देखिए क्या थी, व्हेन देयर इज x 0, x 0 है तो एम्पलीट्यूड क्या है 0 है ना, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0 है, नोड है यहाँ पे। And when x is equal to L, again there is a node x equal, then again we have displacement 0, y 0. These are two boundary conditions. So applying the boundary conditions, boundary conditions are when x equal to 0, y is 0, ये हमने डायग्राम से देख के बताया, and बाउंड्री कंडीशन, ये जो बाउंड्रीज पे अप्लाई हो रही है, एंड व्हेन x इक्वल टू l अगेन y इज 0, दीज आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन, जो एंड्स पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले चेक करते हैं कि ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इसको कि नहीं। सो लेट अस पुट x इक्वल टू 0, तो देखते हैं इन इक्वेशन नंबर 3 whether y comes out to be 0 or not, पहले चेक करते हैं। सो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, आपके पास आ जाएगा माइनस 2a cos 2 पाई vt बाय लैम्डा, x 0 है ना तो साइन 0 हो जाएगा। व्हाट इज साइन 0? 0। तो यस, जब हमने x को 0 पुट किया तो y भी 0 आता है, दैट मीन्स आवर बाउंड्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट हमने सेट कर ली, सेकंड हम पुट कर देंगे। सो सेकंड बाउंड्री कंडीशंस विल, the condition will also be satisfied by equation number 3, that means, so put x equal to L here and y को भी 0 पुट करेंगे। अब हम दोनों कंडीशंस पुट करने जा रहे हैं क्योंकि पहले हमने चेक कर ली, वो ठीक निकली, इसका मतलब सेकंड भी करेक्ट। सो पुट सेकंड कंडीशन नाउ, पुट x इक्वल टू L here and y को 0 पुट करो।
So putting second boundary condition, y को 0 पुट कर दिया, -2a cos 2 pi vt by lambda sin 2 pi l by lambda, x को l पुट कर दिया, मतलब कि साइन 2 pi l by lambda इज 0। इस पूरी इक्वेशन का 0 होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके ऊपर, जहां वेरिएबल टर्म है। अब साइन 0 कौन कौन से एंगल्स के लिए होते हैं? साइन n पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई वो सब 0, तो साइन n पाई आप कहते हैं, साइन 0 है साइन n पाई। ये पूरी इक्वेशन का 0 होना किस पे डिपेंड करता है? इसका मतलब ये 0, अगर ये इक्वेशन 0 है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब ये भी तो 0 है ना, वो निकाल लिया हमने उसको बाहर। तो यहाँ पे अब 0 को हमने लिखा साइन n पाई। अब एंगल्स इक्वेट कर दो, एंगल्स इक्वेट कर दिए, 2 पाई l by lambda is n pi, pi gets cancelled, you get lambda, आपके पास nth वेवलेंथ आ गई। अभी हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, हमने कहा है कि देयर आर साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस, तो अभी पहले वेवलेंथ निकाल ली, फिर हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग? ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया आपको। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? हाँ, यंग्स मॉडुलस ऑफ डेंसिटी करवाया था, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला नोट करो, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग is given by अंडर रूट टी बाय म्यू। एक और फॉर्मूला नोट कर लो, velocity of transverse waves in a string is given by under root t by mu, where t is tension in the string। t क्या है? tension in the string, यहाँ पे नोट करिए, t is tension in the string and mu is mass per unit length of the string। तो ये बहुत न्यूमेरिकल्स में यूज होता है ये फॉर्मूला। T is tension in the string, mu is mass per unit length of the string, mass per unit length of the string, okay। तो वो पुट करते हैं वेव इक्वेशन में, व्हाट इज वेव फॉर्मूला? T is equal to lambda nu या V is equal to lambda nu। So using wave equation V is equal to lambda nu, we get the frequency V by lambda, ठीक है। लैम्डा पुट करो यहाँ पे, कितना आया? 2L by n। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है n टाइम्स दिस। तो ये नोट कर लिए, कर लो, ये nth फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी nv by 2L। nv by 2L, तो nth वेवलेंथ, nth फ्रीक्वेंसी we have found। तो अब इसके आगे हम डिस्कस करते थे n इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन अप nth, हम सारे मोड, सारे पैटर्न्स डिस्कस करते थे। उन पैटर्न्स को कहते हैं नॉर्मल मोड। पर नॉर्मल मोड्स उन्होंने अब सिलेबस में से डिलीट कर दिए, उन्होंने कहा एनालिटिकल ट्रीटमेंट ही करो, तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तक ही करेंगे इसको, आगे के पैटर्न नहीं डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, sound of lowest frequency produced by any musical instrument is called fundamental frequency, और fundamental note भी कहते हैं,
फंडामेंटल टोन भी कहते हैं, ठीक है। तो साउंड ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सो लेट अस कैलकुलेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बाय पुटिंग n इक्वल टू 1 हियर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी फंडामेंटल? v/2l। हाँ, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की साउंड कोई इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करता है, जितनी मिनिमम वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम फंडामेंटल कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यू आ गया v/2l, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई ट्रांसवर्स वेव की। इसमें स्पीड का फॉर्मूला पुट करो तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1/2l √T/u। तो ये फॉर्मूला हम सोनोमीटर में यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रॉम हियर वी गेट दिस फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज 1/2l √T/mu। इफ यू रिमेम्बर, आपने डायमेंशन में इसको चेक भी किया हुआ, बहुत बुक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने चेक किया होगा इसको फ्रीक्वेंसी को। So this is fundamental frequency of transverse waves in a string. ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। nth फ्रीक्वेंसी तो ये है ना